So, good morning, children. This is our first class on supplementary textbook for class 10. We have two textbooks, and that is first flight main textbook and the supplementary textbook, that is what A Trip of Surgery by Mr. Harriot. He is the writer in the story. It is an autobiographical story. So what I told, the way we would study, what is the need to provide two textbooks for class 10 and class 9, 11, 12, all. Main textbook is to study in details, term, phrase, clause, about the writer, about the context, about the literary background. But for supplementary textbook, you have to know only the plot, stories, and the characters, the two things. This is what previously known as long reading textbook, the way presented here. So A Trip of Surgery by Mr. Harriot, he is the doctor here, and two more characters, Tricky, a dog, and Mrs. Pumphrey, the owner of the dog. Three characters. That is Mrs. Pumphrey is a rich lady, highly wealthy woman, highly wealthy, but she's one type of idiot without having the basic knowledge of natural creatures. So this is what the character of Mrs. Pumphrey, and Mr. Harriot, funny, intelligent, a doctor. So this is what the main three characters in the story. Now let's start the plot. If you think about the plot, Mrs. Pumphrey, as living alone, she had her excessive love for the dog Tricky. That is what the problem, as well as what obsessed with the dog, that creates the problem. This is not the case of Mrs. Pumphrey. It's for human things. कि अगर कोई थिंग्स में हम लोग एक्सेसिव अटैच्ड में ना जाता तो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे. दैट इज नेचुरल. एक्सेसिव, दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम. तो ट्रिकी को एक्सेसिव लव, एक्सेसिव केयर क्रिएट अ प्रॉब्लम. दैट इज व्हाट ट्रिकी बिकम फैटी. एक्सेसिव मतलब all the human foods like butter, toast, eggs, milks, cod livers, oil, all type of food that human consume was given to Tricky, and that is what the problem created. He became fatty and unable to run, move. That is what the problems with Tricky, and that's why Tricky needed a doctor, animal doctor, pet doctor, and Mr. Harriot here pet doctor, veterinary doctor बोलते हैं उसको, एनिमल डॉक्टर को वेटरनरी डॉक्टर बोलते हैं. तो इसके पास लाएंगे, एंड ही ट्रीटेड द डॉग ट्रिकी, एंड दैट इज व्हाट द ट्रिप ऑफ सर्जरी. सर्जरी मींस जो सर्जरी, आई थिंक इट इज विजिबल. सो सर्जरी जो काट के कोई ऑपरेशन किया जाता है, काट के ट्रीटमेंट किया जाता है बाय सीजर और व्हाटएवर मे बी, उसको हम लोग सर्जरी बोलते हैं. सर्जरी. तो ये सर्जरी एनिमल डॉक्टर मिस्टर हैरियट, दैट इज व्हाट द राइटर, फनी पर्सन डॉक्टर, उसके पास ले आया मिसेस पम्फ्री. किसको? ट्रिकी को ट्रीटमेंट कराने के लिए. एंड शी वाज रियली वरीड अबाउट इट्स मूवमेंट. खाना छोड़ दिया, मूव करना छोड़ दिया. जो स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन दिया है ट्रिकी का, रियली उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न ह्यूमन थिंग्स, मॉडर्न, दैट इज व्हाट नेचुरल रूल जो होते हैं ना, जैसे चार्ल्स बेबेज के कोटेशन को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं. इफ यू वांट टू लिव, इफ यू वांट टू ग्रो, इफ यू वांट टू प्रॉस्पर्स, यू नीड टू बी स्टे हंग्री एंड स्टे फूलिश. ये स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, ये कोटेशन में यही बता रहा है कि आपको जिंदा रहना है तो आपको जन्ने का उम्मीद रखो, भूख रहना चाहिए अंदर में हर चीज को हासिल करने का, तभी हम लोग आगे. बट उसका अंदर का भूख खत्म हो गया ट्रिकी का, तो उसके खाने का मन नहीं कर रहा. एक्सेसिव पेट, उसका मूव करने का बट स्ट्रेंथ खत्म हो गया लाइफ का. सो ये प्रॉब्लम्स में पम्फ्री उसके पास, हैरोल्ड के पास लाया. तो हैरोल्ड उसको ट्रीटमेंट किया, टू फोल्ड ट्रीटमेंट. जो ट्रीटमेंट, एंड दैट इज व्हाट द मेन समरी ऑफ द स्टोरी. मिस्टर हैरोल्ड फर्स्ट इसको एडवाइस किया कि ये सब फूड वगैरह देना बंद करना है, बट हर एक्सेसिव लव, एक्सेसिव केयर, ये मानना नहीं चाहा, वो माने नहीं. Same food, all those types of human food, even oil and oily and spices food, that is what cod liver, cold water, that is what ice cream, chocolates,
रोस्टेड मटन, चिकन, ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन फूड्स में एक्सेसिव फूड वो सब इसको देते थे। इवन इसके जो वार्डरोब था दैट इज ऑल्सो गिवन दियर। वार्डरोब में जो ड्रेस रखा था ट्रिकी का, वो ड्रेस ह्यूमन बींग्स का इतना ड्रेस नहीं रहता जितना ट्रिकी का ड्रेस रखा। ऑल दिस थिंग ट्रिकीज फूड एंड ड्रेस सजेस्ट Pumphrey's excessive love and care for the dog. That is what the first part of the story. And second, she contacted Dr. Harriet and he started the treatment. Then he smiled at the problems, and what he thought, it is not a treatment that can be done on Tricky in his home, in his kennel. कैनल में रखते हैं डॉग को, तो उसमें वहां पर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो ही फाइनली एडवाइज्ड हर टू ब्रिंग इट टू हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटलाइज फॉर 14 डेज। कितना दिन? 15 दिन का उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए बोले। कौन? डॉक्टर हैरियट पम्फ्रे को 15 दिन उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए बोले। ये 15 दिन हॉस्पिटलाइज्ड में वो ट्रीटमेंट जो बनाया, टू फोल्ड ट्रीटमेंट, एंड दैट इज व्हाट द सर्जरी, नॉट Caesar and blood surgery, but blood or blade surgery, nothing like that. It totally different types of surgery, and their surgery comes out to be a trim, victory, win, जीता है, वो हासिल हुआ है उसका जो सर्जरी अप्लाई किया ट्रिकी का ऊपर। और ये सर्जरी क्या था? फर्स्ट थिंग्स व्हाट ही डिड, ही पुट द ट्रिकी विद इन ए ग्रुप ऑफ डॉग्स का ग्रुप में रखना स्टार्ट किया उसको, विदाउट नोटिस और इंफॉर्मेशन टू मिस्टर पम्फ्री। मिसेस पम्फ्री को कोई उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया, और डॉग को, ट्रिकी को एक ग्रुप ऑफ डॉग के अंदर में छोड़ दिया। अभी फर्स्ट थिंग्स वो क्या होगा, विदाउट रेस्पॉन्स, स्टेबल कंडीशन में, क्योंकि वो एक्सेसिव फूड ऑल थिंग्स वो इजीली मिलता था। 2-3 डेज उसको खाना देना बंद कर दिया। तो 1-2-3 डेज के बाद व्हाट हैपन, ऑटोमेटिकली एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आते हैं, जो इंस्टिंक्ट क्या है कि उसको फूड फाइट करके लेना है। दैट इज व्हाट द रूल ऑफ नेचर। इवन इफ यू गो थ्रू द थ्योरी ऑफ डार्विन, द व्हाट एग्जिस्टेंस फॉर द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो स्ट्रगल करके टॉप में आता है वही दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। ये नेचुरल रूल होता है। ये नॉट ओनली फॉर एनिमल्स, दिस इज फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल। If you think about the civilization or through the world history, the dinosaur or large size of species अर्थ में आए और एक्सटिंक्ट हो गए क्योंकि they are not fittest for this सर्वाइवल के लिए फिटेस्ट नहीं था। सेम थिंग्स टू, दिस इज व्हाट नेचुरल थिंग्स वी मस्ट फाइट टू एग्जिस्ट। इवन दिस पैंडेमिक सिचुएशन में भी जो फाइट कर रहा है लड़ने के लिए, वो आगे भी लड़ सकते हैं। तो ये फाइट, दिस इज व्हाट नेचुरल रूल्स, इससे बाहर ले चले गया था ट्रिकी को। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट वो स्टार्टेड क्या, एक ग्रुप ऑफ डॉग के अंदर छोड़ दिया। वो फर्स्ट दिन कुछ नहीं किया, दूसरा दिन नहीं, तीसरा दिन वो ग्रुप में जाके खाना खाना स्टार्ट किए। बट फर्स्ट सेकंड डे मिला नहीं, थर्ड डे में मिला नहीं, फोर्थ डे से वो लड़ना स्टार्ट किया बाकी सब डॉग के साथ। एंड देन उसके फिटनेस भी नॉर्मल होते हैं जाए, और वो एज ए डॉग रिएक्शन सब नॉर्मल फीलिंग्स उसका रिटर्न आया। दैट इज एंग्री, एक्सप्रेशन, मूवमेंट, सब नेचुरल आना स्टार्ट हुआ। Then after 1 week मिसेस पम्फ्रे उसका जो एक्सेसिव लव एंड केयर वो कंटिन्यू रहा, लेकिन उसके लिए फूड भेजना स्टार्ट किया। क्या भेजना? वाइन भी देते थे वो ट्रिकी को, वाइन, बट टोस्टेड ब्रेड, एग्स, ऑल दिस थिंग। एंड मिस्टर हैरियट, डॉक्टर हैरियट जो राइटर है डॉक्टर, तो ये क्या किए, वो सब फूड और डॉग को नहीं देते थे, वो खुद और उसका हॉस्पिटल का स्टाफ कंज्यूम करना स्टार्ट किया, खाना स्टार्ट किए कि उसको नहीं देंगे, और उसको इन्फॉर्म भी नहीं किया, क्योंकि दिस इज व्हाट नेसेसरी फॉर द ट्रीटमेंट। इफ यू थिंक दिस इज रॉन्ग, यू मे थिंक, बट दिस इज नॉट ए रियल। फॉर एज ए डॉक्टर ही नीड टू ट्रीट दैट। और ही कैसे करेंगे, उसको फेंक भी नहीं सकता और उसको दे भी नहीं सकता, देने से उसका ट्रीटमेंट स्टॉप हो जाएंगे। तो उन लोग खुद कंज्यूम करना स्टार्ट किया, और जो वाइन देते थे, फूड देते थे, और एग्स, ऑल थिंग्स। और लास्ट में वो विद इन 14 डेज द ट्रिकी उसके नॉर्मल बिहेवियर, नेचुरल जो डॉग शुड बी ट्रीटेड लाइक ए डॉग, और ए नेचुरल क्रिएचर शुड बी ट्रीटेड लाइक अ नेचुरल क्रिएचर, उस पैटर्न में ये फाइनली क्या हुआ, उसको अपना नेचुरल कैरेक्टर बाकी सबसे लड़ के खाना खाना, वो मूव करना स्टार्ट किए, वो एंग्री, ऑल दिस द डॉगली फीलिंग्स रिटर्न आए, और डॉग नेचुरली अपना डॉग के इंस्टिंक्ट उसको रिटर्न आया। और मिस्टर हैरियट क्या किया उसको ट्रीटमेंट में, सो टू फोल्ड ट्रीटमेंट किया। एक तो कंट्रोल डाइट्स, फूड्स को कंट्रोल किया। सेकेंड थिंग्स, उसको नेचुरल डॉग के सर्कमस्टेंस में रखा जाते हैं।
एंड फाइनली क्या हुआ, उसका जो फूड आया उसको भी नहीं देखे, उन लोग खुद कंज्यूम किया, व्हाट एवर मे बी, बट ट्रीटमेंट सही। दिस इज हाउ उसका सर्जरी किए, टूथफॉल कंट्रोल ऑफ फूड, एंड सेकेंड थिंग्स give its natural ambience, circumstance to fight, to struggle, to live. That is what the natural rules. Even human beings का भी इस टाइप का ट्रीटमेंट है सर्जरी का। ये टीम बहुत सारा जो डिजीज होता है जिसका ट्रीटमेंट व्हाट ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्टर और हॉस्पिटल मना कर देते, इसका ट्रीटमेंट नहीं होता, फॉर एग्जांपल किडनी का प्रॉब्लम्स, तब उसके बाद क्या नेचुरल थेरेपी चले जाते हैं। इंडिया में है इसके बारे में। नेचुरल थेरेपी क्या होते हैं कि उसको नेचुरल वे, with the setting of sun you should go to bed, with the rising of sun he should wake up and started the day। नेचुरल वे उसको लीड करना है लाइफ, नेचुरल तरीका में ऑटोमेटिकली एक क्योर आते हैं। बहुत पेशेंट ऐसे ट्रीटमेंट होता, हरिद्वार में है इस टाइप का एक ट्रीटमेंट, व्हाट एवर मे बी, बट दिस इज रेलेवेंट विद द टेक्स्ट। टेक्स्ट के साथ ये रेलेवेंट है कि नेचुरल थेरेपी इसको बोलते हैं। जो थेरेपी में ट्रिकी को ट्रीटमेंट किया, उसको सर्जरी किया, उसको डॉग को एनवायरनमेंट में छोड़ दिए, वो स्ट्रगल द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो नेचुरल रूल है उसका ऊपर कोई ह्यूमन बींग्स, कोई नेचुरल क्रिएचर नहीं है। जिस दिन हम लोग उससे भटक जाते हैं उस दिन ही हम लोग का एक्सटिंक्शन एंडेंजर स्पीसीज में चले जाएंगे। तो ये जो नेचुरल थेरेपी उसका ऊपर किए मिस्टर हैरियट, उसका फूड को कंट्रोल किया, डॉग के सर्कमस्टेंस में डॉग के साथ रह दिया, स्ट्रगल किया डॉग के साथ फाइट किया, एंड फाइनली टोटली क्योर्ड द डॉग ट्रिकी, एंड मिसेस पंपरी व्हेन सॉ द डॉग आफ्टर 2 weeks रियली हैप्पी, एंड शी वाज अमेज्ड हाउ इट इज पॉसिबल। And here at the ending one funny remarks by Harriet, that is most important command, we should keep the dog with us for more treatment, but not to her but to other colleagues of the hospital, she, Mr. Harriet told it in a funny way। बाकी सबको मजाक में बताई कि डॉग को और कुछ दिन हम लोग रख लेते हैं, क्यों? क्योंकि तो वो फूड जो वाइन बेग ये सब आ रहा है वो कंटिन्यू हम लोग को मिलते रहेंगे, and that is what a funny things in a funny way, but whatever it is, what cured totally, treatment ठीक हो गया, dog already cured from the problems, and that's why whatever finally taken back to Humphrey and advised her, Dr. Harriet advised, let it live like a natural life, like a dog, don't treat it as a human, dog should be treated like a dog, that's how it will be healthy, fit and what in a working condition। ये एडवाइस किया ऑल्दो, एंड देयर द स्टोरी एंडेड, इस तरीके में स्टोरी एंडेड हुआ। तो हैरियट एक इंटेलिजेंट था, वाइज पर्सन था, इवन फनी पर्सन एज वेल। फनी, उसको फूड नहीं देके खुद कंज्यूम कर रहा है, बट दिस इज व्हाट फनी, बिकॉज दिस इज नॉट ए डिप्रेवेशन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ समवन एल्स, दिस इज व्हाट ए थिंग्स ही इज डूइंग, बट दिस इज व्हाट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट एज वेल। तो इसको हम लोग फनी ट्रीटमेंट हिसाब से लेंगे। अगर इस टॉपिक का ऊपर क्वेश्चन आए कि वो डॉग का फूड्स खुद कंज्यूम कर रहा था, इवन फाइनली डॉग को रखने के लिए वो मजाक में बताया, इसमें टोटली उसको फनी थिंग्स एक्सप्रेस हो रहा है, बिकॉज ही इज नॉट दैट टाइप ऑफ इंसान टू बी वर्ड बाय सपोर्टेड बाय समवन एल्स। तो ये फनी कैरेक्टर था मिस्टर हैरियट, इंटेलिजेंट था, वाइस एंड डॉक्टर, रेस्पॉन्सिबल डॉक्टर। पंपरी इडियट्स टाइप ऑफ वुमेन विद वेल्दी रिचेस्ट वुमेन, and Tricky the pet dog। So these are the main 3 characters। So final things is that whatever may be the discussion, you must read the text thoroughly, क्योंकि for this session ये क्वेश्चन इस टाइप का समरी और कैरेक्टर वाइज से ज़्यादा टॉपिक्स वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से क्वेश्चन आएंगे। सो यू मस्ट प्रिपेयर दैट, टेक्स्ट को थ्रोली स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में डॉग का डिस्क्रिप्शन, सेकंड पार्ट में प्रॉब्लम्स और उस प्रॉब्लम से मिस्टर पैम्परी कैसे प्रॉब्लम्स हुआ, थर्ड पार्ट में ये डॉक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए और उसका ट्रीटमेंट, 2-fold ट्रीटमेंट, डाइट कंट्रोल and natural environments, natural treatment here, natural therapy, what types of therapy or treatment he used, natural therapy, ये finally the curement, and that is what the dream, victory, win, कैसे उन लोग हासिल किया अपना सर्जरी। और ये टोटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरी, कोई सीजर यूज नहीं किया, कोई ब्लड, नथिंग लाइक दैट, उसको एक नेचुरल ट्रीटमेंट हुआ, नेचुरल सर्जरी हुआ, जो जिसमें क्या सर्जरी क्या काटे, यहाँ पर द फूड को काटे उन लोग, और ट्रीटमेंट नेचुरल थेरेपी दिए, एंड दैट इज हाउ द डॉग क्योर, एंड दिस इज व्हाट द स्टोरी। सो प्लीज रीड द NCERT टेक्स्ट बुक, कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर। जब भी टाइम होंगे आप लोग का कॉपी चेक करेंगे। एंड लिसन, ये सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक में टोटल 10 चैप्टर्स था, उसमें 3 चैप्टर्स फॉर दिस सेशन CBSE डिडक्ट कर दिए।
तो 7 चैप्टर से 7 का ये फर्स्ट चैप्टर का समरी डिस्कशन होगा और 6 चैप्टर्स नियर अबाउट रिमेनिंग, उसको 6 वीडियो दे देंगे। बट इसमें कुछ प्रॉफिट उतना नहीं होगा जब तक ना आप खुद सेल्फ स्टडी करेंगे। सो कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर एंड थैंक यू अगेन।